Yes, hello everyone. Today I see the semiconductor. Okay. In the last class, I discussed your basic, like little bit I take insulator, semiconductor, and your transport phenomena. So today I take semiconductor. Okay, in very much detail, in very much details. तो देखिए ध्यान से सेमीकंडक्टर आज हम एकदम डिटेल में देखेंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके गेट एग्जाम में भी आता है और साथ के साथ क्या डिवाइसेस समझना है तो सेमीकंडक्टर तो आना चाहिए अपने आप को। तो देखिए ध्यान से मेरे पास सेमीकंडक्टर तो दो तरीके के सेमीकंडक्टर मेरे पास है। एक तो मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और दूसरा मेरे पास एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर है। ओके, तो इंट्रिंसिक का मतलब ही होता है सर प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिक का मतलब है आई से वी हैव व्हाट इम्प्योर सेमीकंडक्टर। impure semiconductors. Intrinsic means naturally obtained semiconductor, or extrinsic means I say this whenever we add some impurity. So whenever we add impurities, it become extrinsic. So I sometimes call the impure semiconductor. And in intrinsic semiconductor, we have further two type. So one is we have N-type semiconductor, and the second one we have what P-type semiconductor. So in very much detail, I see all these things now. First of all, I take the intrinsic semiconductor or the pure semiconductor. So I just try to understand. Now just see this. Intrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor, if I take intrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor, as I say, which is naturally obtained. So the fourth group elements, I say the semiconductor. So every semiconductor and the metal are in crystalline form. So what is the meaning of crystalline form? Means I say this every atom are in very much regular pattern. Means I say this, one atom and along with I say this very much like systematic arrangement. And this is basically proved by or revealed by I say the X-ray theory. Every semiconductor has a crystalline structure, means very regular patterns of the structure. So I just say semiconductor. So pure semiconductor, the fourth group elements are semiconductor. The fourth group means the outer cell electrons are four. So if I just draw this, so this is very simple. Now try to understand. So this is we have. So there's a four electron in the outer cell. So each atoms. Okay. So as in the first class I discussed, every atoms are bonded together with the covalent bonding. So we see the covalent bonding. So I draw here the crystalline structures. So this is we have what crystalline structure. तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जैसे कि एक्स थ्योरी ने बताया था कि सारे crystalline structure में पाए जाते हैं. So I draw this crystalline structure. Okay. So here I draw the intrinsic semiconductor at crystalline structure. Crystalline structure at T is equal to I say this 0 Kelvin. 0 केल्विन का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं है. तो अगर कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं होगी तो ये बात एकदम तय है या एकदम परफेक्ट है कि आपको इसमें कोई भी आपके पास लाइक बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा. यानी क्योंकि आपको बॉन्ड जब भी ब्रेक करना है तो कहीं ना कहीं मेरे को कुछ एनर्जी चाहिए होती है. तो एनर्जी मेरे पास तो है नहीं. तो सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड होंगे. तो एक भी मेरे पास कोई बॉन्ड यहाँ ब्रेक नहीं होगा. सारे के सारे जो होंगे परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड होंगे. मीन्स आई से दिस इफ आई ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम. सो हम 100% कह सकते हैं कि मेरे पास एक कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है. तो एकदम क्लियर है यहाँ से कि
आई से दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। तो ये पूरी तरह से क्या होगा, आपका फील्ड होगा, और ये पूरी तरह से क्या एम्पिटी होगा। मीन सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे होंगे, आपके वैलेंस बैंड में होंगे। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि आपको कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और रूम टर्म 0 केल्विन पे मेरे पास कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि थर्मल एनर्जी मेरे पास 0 है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपका जो सेमीकंडक्टर है 0 केल्विन पे एज ए इंसुलेटर की तरह काम करेगा, एज ए इंसुलेटर। So the semiconductor is working as an insulator at room temp at basically T is equal to 0 Kelvin. So 0 Kelvin पे which is working as an insulator because we don't have free electrons. कोई free charge carriers नहीं है। देखिए ध्यान से, जैसे ही हम टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन की तरफ करते हैं, एज वी मूव फ्रॉम 0 केल्विन टू 300 केल्विन, तो जैसे ही हम 0 केल्विन से 300 केल्विन की तरफ मूव करेंगे, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे थर्मल एनर्जी होगी। थर्मल एनर्जी होगी तो आपके बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। तो देखिए ध्यान से, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, क्योंकि ये if I just draw the what your like energy band diagram at 300 Kelvin, so what we observe, so here we see this, some of the covalent bonds are broken, कुछ बॉन्ड आपके टूट जाएंगे। जैसे बॉन्ड टूटेंगे, कौन से बॉन्ड टूटेंगे, जो इतनी एनर्जी को गेन कर लेंगे। आपको पता है कि ऑन एन एवरेज यहाँ पे एनर्जी कितनी रहती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी गेन करेंगे, आपके बॉन्ड टूटना स्टार्ट होंगे। जैसे मान लीजिए बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है कि एक बॉन्ड टूटेगा, इट क्रिएट बेसिकली द वन फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज व्हाट इट्स वैकेंट प्लेस। तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक उसका वैकेंट प्लेस आ जाएगा। क्या ठीक है यहाँ तक? सो आई थिंक सो, अगर दो बॉन्ड टूटेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो उनके वैकेंट प्लेस आएंगे। इन द लास्ट क्लास आई लिटिल बी डिस्कस कि जो भी वैकेंट प्लेस है, जो ऑप्शंस है, उसको आप होल कहते हैं। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं इस बात को यहाँ से कि मेरे पास कुछ ना कुछ फ्री चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं। अगर फ्री चार्ज कैरियर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें हम क्या लगाएं, बैटरी लगाएं या फिर ईएमएफ लगाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, सो सर्टेनली वी सी द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड वी सी कि कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे करंट आ जाएगी, करंट आएगी। और जो करंट होगी काफी कम होगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि थर्मल एनर्जी से कुछ ही बॉन्ड टूटेंगे, अगर कुछ बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ ही मेरे पास करंट आएगी। ये बात एकदम तय है, यहाँ तक इसमें 1% कोई दो राय नहीं है। खैर, देखिए ध्यान से, अगर हम आगे बढ़े, जस्ट आई से दिस की कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि जैसे आपका एक बॉन्ड टूट रहा है ना, तो एक बात तो एकदम कंफर्म है कि इफ वन कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन, सो आई से दिस इट क्रिएट 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 होल। सो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट करा, दो बॉन्ड टूटेंगे, दो इलेक्ट्रॉन दो होल क्रिएट करेंगे। ओके, नाउ आई से दिस इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ होल्स होंगे, विच इज इक्वल टू Ni, एंड आई से दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni। Ni की इक्वल होगा। दिस Ni is what? This is called the intrinsic carrier concentration. This is called the what? Intrinsic carrier concentration. And you know, this number of electron, number of holes always equal in this Ni, and mathematically Ni is defined like this: Ni square is equal to a naught t cube e to the power minus Eg by kt. This is here, मतलब Ni और जो टेम्परेचर का रिलेशन है, which is very much related, Ni square is directly proportional to t cube, बहुत ज्यादा रिलेटेड है टी क्यूब, बिकॉज आपको पता है जितनी टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी एनर्जी आएगी, उतने बॉन्ड टूटेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो Ni स्क्वायर इज वेरी मच प्रोपोर्शनल टू योर टी क्यूब e to the power minus Eg by kt. So hope so, is it correct? Okay, so see this is Ni square is equal to a naught t cube e to the power minus Eg by kt. देखिए ध्यान से, अगर हम आगे बढ़े तो शायद आपको यहाँ तक एकदम समझ में आ रहा होगा कि जो टेम्परेचर के साथ इवन इसका बैंड गैप के साथ रिलेशन है। जाहिर सी बात है, हर मटेरियल का अलग अलग बैंड गैप होगा, तो जितना बैंड गैप है, क्या टेम्परेचर है, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपका Ni बड़ी तेजी से इंक्रीज करेगा, Ni आपका बढ़ेगा। ओके, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। नाउ आई से दिस कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है या फिर आपके जो होल हैं, दोनों करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नाउ आई डिस्कस कि किस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन और होल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। सो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली, सी दिस कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों कैसे रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो होप सो वी सी कि कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन और जो आपका होल है, दोनों के दोनों आपके करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आप फोर्स लगाओगे तो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन देखिए, जैसे कि जो आपका ये वैकेंट प्लेस है ना, ये होल जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि आपको पता है कि ये होल है, तो ये नियर इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि अभी इसके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा है। तो होगा क्या कि ये जो होल है ना, ये किसी न किसी नियर बाई एटम्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फिच करता है। फॉर एग्जाम्पल आई से दिस कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से होल यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद इसको निकाल देगा यहाँ से, ऐसे आ जाएगा।
तो आप ऐसे कह सकते हैं कि होल इधर से इधर आ रहा है, तो होल्स इज बेसिकली मूविंग द वैलेंस बैंड एंड द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग द व्हाट कंडक्शन बैंड। तो बोथ द पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिकली द करंट कंट्रीब्यूशंस। तो आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है करंट कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंडक्शन बैंड में। जो आपका होल है वो करंट कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहा है, आपका कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, होल वैलेंस बैंड में करंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मीन साइज से दिस कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन है, तो जो करंट होगी पीछे होगी आई एन होगी। अगर आपसे मैं कहूँ कि होल डायरेक्शन इधर है, तो होल डायरेक्शन इधर है, तो करंट डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी। दिस इज आई पी। तो दिस इज अ नेट करंट इन बेसिकली आई से दिस योर इन सेमीकंडक्टर। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो आपकी करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन बैंड में, और जो होल की वजह से वो कहाँ पे वैलेंस बैंड में, एंड बोथ द पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट करंट। सो दिस इज वी हैव, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ध्यान से, अगर आगे बढ़े तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास कैरियर्स हैं, फ्री कैरियर्स है, बोथ द पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। तो एक चीज यहाँ पे और माइंड करने वाली है कि इसमें जब भी बॉन्ड टूटता है तो इक्वल इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है, जो कि ni स्क्वायर के इक्वल होता है। दिस आई टेक बेसिकली इट्स प्रूफ इन बेसिकली द फर्मी लेवल क्लासेस, व्हिच इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई जस्ट टेक इन द फर्मी क्लासेस। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ni एटम के साथ इस तरह से रिलेटेड है, ni टेम्परेचर का ni बढ़ेगा अगर बैंड गैप आपका इंक्रीज करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ni फॉर सिलिकॉन, तो अगर हम फॉर सिलिकॉन की बात करें तो ni की वैल्यू होगी 1.5 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो फॉर जर्मेनियम की बात करें तो ni की वैल्यू आएगी विच इज 2.5 10 टू पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात भी यहाँ से क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपका जो जर्मेनियम है उसका ni ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें सिलिकॉन से। और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि आप ऐसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका ni है वो बैंड गैप पे डिपेंड करता है। और आपको पता है कि जो आपका बैंड गैप होता है for easy I say this at room temperature, फॉर सिलिकॉन आई से दिस 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। और जो आपका सिलिकॉन के लिए होता है, तो सिलिकॉन के लिए जो आपका ईजी है एट रूम टेम्परेचर विच इज आई से 1.1। तो सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है, जबकि जर्मनी के लिए बैंड गैप की वैल्यू कम रहती है। तो जल्दी बॉन्ड इजिली बॉन्ड टूट सकते हैं। तो बॉन्ड इजिली टूटते हैं, इस वजह से क्या होता है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एन की वैल्यू जर्मेनियम में ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें सिलिकॉन से। देखिए ध्यान से आगे हम बात करते हैं अगर कंडक्टिविटी की। तो देखिए ध्यान से, अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, सीधा मतलब है कि जो आपके कैरियर्स हैं, दोनों के दोनों जो कैरियर्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कंट्रीब्यूशंस। So both are responsible for the current contribution. So now just try to understand and listen carefully. Here we have a two particles. One is I say electron and one is hole. So sigma is equal to this conductivity. In the last class I discussed nq mu n and p q mu p. So ये मेरे पास है, because I say this here the electron and the hole both are responsible for the current. Now just try to understand. See. Now see here in n type in intrinsic semiconductor जो आपका n और जो p है दोनों किसके इक्वल होते हैं, ni के इक्वल होते हैं। तो अगर हम एक बार यहाँ पे बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ni nq mu n plus mu p. So this is basically the conductivity for the intrinsic semiconductor. This is what we have. The sigma is equal to ni q mu n plus mu p. Now what we learn from this, so I say this कि कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका सिग्मा है which is very much proportional to ni, जितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतना आपका ni बढ़ेगा, ni बढ़ेगा तो आपका सिग्मा बढ़ेगा कंडक्टिविटी। कई बार आप ऐसे भी कहते हैं कि व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द टेम्परेचर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस पे थोड़ा सा माइंड करें कि एज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस ni increases, so I say this here sigma increases. So for the semiconductor whenever we increase the temperature conductivity increases. So this is a mathematical relation we use frequently for solving the problem. एंड द म्यू वन और म्यू पी की बात करें, कई बार स्टूडेंट कहता है सर म्यू वन भी तो कम होगा, बट म्यू वन भी इतना कम नहीं होता जितना सिग्मा आपका इंक्रीज कर जाता है। तो कई बार आप ऐसे कहते हैं कि सर कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है सर, okay, so this is v and what about the resistivity, what is the unit of this number, I said mho per centimeter, and what is the unit of this resistivity, which is 1 upon ni q mu n plus mu p, mu n plus mu p. So ni q mu n plus mu p, and this is Siemen per Siemen, not Siemen here, this is I say ohm centimeter. So this is ohm centimeter, this is the resistivity unit. Okay, so finally I calculate the conductivity. If I just take the one example to understand this, अगर मैं आपसे कहूँ कि sir what is the conductivity for the pure germanium, okay, so if I just take the example, I say this conductivity for pure germanium. देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम प्योर जर्मेनियम जो है उसकी कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं, तो उसकी प्योर जर्मेनियम कंडक्टिविटी क्या होगी, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए ध्यान से, हियर आई से दिस this in pure germanium this ni is equal to which is 2.5 10 to the power 13 per centimeter cube. Okay, this is we have what, and if I talk about the mu n, so mu n is equal to 3800
3800 centimeter square volt into second. This is mu1 we have. And what about the mu p? So mu p is equal to 1800 centimeter square volt into second. तो ये कहीं ना कहीं म्यू और म्यू की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि सर यहाँ पे सिग्मा आई क्या होगा, तो सिग्मा आई की वैल्यू क्या होगी, एन आई क्यू म्यू वन प्लस म्यू पी। और इन दोनों जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आई गॉट 0.0224 mho पर सेंटीमीटर। इफ आई जस्ट टॉक सी दिस नंबर, अगर इस नंबर को हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो काफी कम आ रही है। जैसे क्या समझ में आ रहा है आपको? समझ में यही आ रहा है कि सर जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी कम होती है। क्या मतलब है इसका? कंडक्टिविटी मतलब होता है कोई भी डिवाइस कितनी करंट को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ से सीधा लॉग समझ में आ रहा है कि इसमें ज़्यादा करंट सपोर्ट नहीं कर सकती। मान लीजिए जैसे हम अगर डायोड या सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सर डिवाइस ज़्यादा करंट को सस्टेन नहीं कर सकती है। सो कई बार आप ऐसे भी कहते हैं कि सर इसका जो डिसएडवांटेज यही है कि इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं इस डिवाइस का। केवल एक ही डिवाइस है पूरी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि इससे फैब्रिकेट करते हैं, पिन डायोड। पिन डायोड इज बेसिकली यूज। सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस? बेसिकली द आई से प्योर सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी बहुत कम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मैथमेटिकल रिलेशन से, द कंडक्टिविटी फॉर दिस प्योर सेमीकंडक्टर इज वेरी स्मॉल and there is no practical significance, low conductivity. And I say this only one device which is fabricated through your pure semiconductor spin diode. तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो अब मैंने ये समझ लिया कि जो नेचर से मेरे को सेमीकंडक्टर मिला हुआ है उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो नेचुरली ऑब्टेन सेमीकंडक्टर डजंट हैव एनी मीनिंग। ओके, बिकॉज आई से दिस कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या? करंट कितनी फ्लो करेगी, करंट इसमें फ्लो ही नहीं कर सकती है। तो फिर इसको हम इस बार किसी काम का नहीं, तो क्या करें सर? हम कहीं ना कहीं मेरा जो अगला स्टेप ये है कि किसी तरह से कंडक्टिविटी बढ़े। सर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है? थ्रू डोपिंग। So we use a term which is called doping. So doping का मतलब क्या है कि anyhow we basically increase the conductivity. So what is the meaning of doping? So doping का मतलब ये है कि सर आप कुछ इस तरह से कहना चाहते हैं कि सर आई जस्ट वांट टू इंक्रीज द नंबर्स। अगर हम नंबर्स बढ़ा दें, कैरियर्स बढ़ा दें, तो देखिए अभी आपने सीखा है कि यहाँ पे मेरे पास दो, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे सीखा है कि मेरे पास कहीं ना कहीं दो पार्टिकल, एक तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा होल है, दोनों को दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मैं किसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन या होल दोनों में से किसी एक को भी बढ़ा देता हूँ तो करंट की जो फ्लो होने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब कैसे बढ़ाएं? तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो आई टेक द टर्म विच इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब होता है कि किसी तरह से हम इसकी क्या करें? कंडक्टिविटी इंक्रीज करें। ठीक है ना? डोपिंग मीन्स टू ऐड बेसिकली द इम्प्योरिटी to enhance the conductivity. So this is possible only whenever we enhance or increase the number of carriers, and the carrier either electron or hole, whatever I want we increase it. Either we increase electron, either we electron, holes. So whenever I just take, so we call basically the extrinsic semiconductors. First of all I take the basically the doping. डोपिंग का मीन्स क्या है? डोपिंग का मतलब है टू इंक्रीज द बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स, ओके, टू ऐड द इम्प्योरिटी। एंड जब ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका करंट कैरिंग एबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो मेरे पास जो डिवाइस होगी या जो मेरे पास मटेरियल होगा सिग्निफिकेंट होगा। तो जनरली हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो हम इम्प्योरिटी लेते हैं तो दो तरह की इम्प्योरिटी लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई से दिस we have what boron, aluminum, gallium, these impurities whenever we mix. So I say this, these impurities are called the what? Acceptor impurities. I call the what? Acceptor impurities. Acceptor impurities. और कई बार आप इनको क्या कहते हैं? इसको acceptor impurities. और whenever we add these impurities, so I call it become p-type semiconductor. पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब भी हम क्या करते हैं कि जो आपके पास सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, अगर उसमें बोरान, एल्युमिनियम या गैलियम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो कैसा बन जाता है आपका? पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे अगर हम बात करें इम्प्योरिटीज की कौन सी, जैसे कि मेरे पास अगर क्या है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, दीज इम्प्योरिटीज इफ आई ऐड, तो दीज आर कॉल्ड द डोनर इम्प्योरिटीज। जैसे इनको हम ऐड करते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ओके, सो जैसे ही आप इसमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप और एन टाइप बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा, और अगर दोनों ऐड करते हैं तो एन टाइप बन जाएगा। तो हम करने क्या जा रहे हैं? किसी तरह से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली, सी दिस। लेकिन से फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द बेसिकली द डोपिंग प्रोफाइल। सर डोपिंग प्रोफाइल का क्या मतलब होता है? डोपिंग प्रोफाइल का मतलब ये है कि हम किस रेशियो में आपका इंक्रीज करते हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सी दिस डोपिंग प्रोफाइल। ओके, तो देखिए ध्यान से, अगर हम डोपिंग प्रोफाइल की बात करें तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि सर डोपिंग प्रोफाइल में क्या है? दिस इज 1:10⁻6 और 8। क्या मतलब इसका है? तो 1:10⁻6 और 1:10⁻8, मीनिंग यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि 1:10⁻6 और 1:10⁻8 की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द मॉडरेट डोपिंग। सो आई कॉल द व्हाट? मॉडरेट डोपिंग। Moderate doping. Okay. The 1:10⁻11. This is what we have. 11. This is called the what? Lightly doped.
दिस इज लाइटली डोप्ड और लो डोपिंग, लाइटली डोप्ड। नाउ सी दिस, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो इसे 1:10 पावर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10⁻³ दिस इज कॉल्ड द हैवीली डोप्ड, और ऐसे दिस हाईली डोप्ड, दिस इज हाईली डोप्ड। तो यहाँ पे लाइटली डोप्ड है और यहाँ पे क्या आपका पास है, हाईली डोप्ड है, ठीक है ना। सो लाइट हाईली डोप्ड, लाइटली डोप्ड एंड मॉडरेटली डोप्ड, 1:6 और 10⁻8 मॉडरेटली डोप्ड, हाईली डोप्ड एंड लाइटली डोप्ड। तो ये लिखा हुआ, इसका क्या मतलब ये है कि अगर आपके पास 10⁻11 लाइक प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स हैं तो उसमें आप एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो आई कॉल दी लाइटली डोप्ड। 10⁻6 आपके पास लाइक प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, तो अगर उसमें आप कितना एक ऐड करते हो इम्प्योरिटीज, उसको बोलते हैं आप क्या, मॉडरेटली डोप्ड। अगर आप 10⁻6 आपके पास सिलिकॉन एटम है और उसमें अगर आप एक ऐड करते हो तो हाईली डोप्ड बोलते हैं, डोपिंग प्रोफाइल। तो मॉडरेट डोप का मतलब कम से कम आपको इतनी डोपिंग रखनी, तभी आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर से क्या बनेगा, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कभी एक्सटेंसिव बनेगा अगर आप इस लेवल की डोपिंग करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि सर वो रिमेन इंट्रिंसिक या उसकी कंडक्टिविटी में कोई इजाफा नहीं होगा। सो नाउ आई टेक बेसिकली द एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं, सो वी ऐड बेसिकली द पेंटावलेंट इंप्योरिटी। ओके, तो जैसे ही इसमें हम पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं मतलब फिफ्थ ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे मेरे पास एल्युमिनियम फास्फोरस, अगर हम सॉरी एल्युमिनियम नॉट एल्युमिनियम, ऐसे दिस फास्फोरस आर्सेनिक अगर ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कहते हैं सर पेंटावलेंट इंप्योरिटी, और जैसे पेंटावलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हो तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। इफ आई जस्ट टेक दिस, तो पेंटावलेंट मतलब फिफ्थ ग्रुप है, तो इसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल में, दिस इज वी हैव व्हाट 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कहाँ मिक्स कर रहे हैं हम, इसको फोर्थ ग्रुप में मिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए सिलिकॉन के तौर पर देखिए। सो दिस इज वी, इफ आई जस्ट ड्रॉ इमीडिएटली सी दिस, आपको पता है कि इस तरह से मेरे पास ये रहेंगे, है ना। सी, तो आपको पता है सर यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे बॉन्ड फ्रेम हो जाएंगे, दिस इज बिकॉज एट आई जस्ट टॉट द टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो कोई भी मेरे पास यहाँ पे दिस इज आल्सो द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यस। तो अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टेम्परेचर कितना 0 केल्विन, तो कोई भी थर्मल एनर्जी है नहीं। तो अगर कोई थर्मल एनर्जी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि सर यहाँ पे पूरे के पूरे क्या होंगे, मेरे पास परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। सो वी हैव व्हाट परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग, सो वी डोंट हैव एनी लाइक थर्मल एनर्जी। सो डेफिनेटली आई से दिस वी हैव व्हाट, सारे के सारे यहाँ बॉन्ड फ्रेम होंगे, एक भी यहाँ पे बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोई थर्मल एनर्जी यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज बेसिकली द वी हैव। ओके, now just try to understand if I take here I say this we have what conduction band, ये मेरे पास यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड बना हुआ है, वैलेंस बैंड बना हुआ है, तो ये पूरी तरह से क्या होगा आपका फील्ड होगा ये, और ये पूरी तरह से क्या होगा इम्पिटी होगा। सो दिस इज कंप्लीटली एम्पिटी। क्यों ऐसा एम्पिटी, आपको एकदम क्लियर है क्योंकि आपको पता है 0 केल्विन कोई आपके पास टेम्परेचर, तब कोई एनर्जी नहीं है तो बॉन्ड टूटने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैं एक और लेवल, दिस इज बेसिकली द ईसी, दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ वैलेंस बैंड, सॉरी एज ऑफ कंडक्शन बैंड, दिस इज ईवी, दिस इज एज ऑफ वैलेंस बैंड। अगर एक बात यहाँ पे और देखें अगर आप, तो यहाँ पे मैं एक और एनर्जी स्टेट डिफाइन करता हूँ, दिस एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द व्हाट डोनर एनर्जी लेवल। सर ये क्या बताता है, यही बताता है कि सर जो आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रहता है, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है वो यहाँ पे होता है, दिस इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसके एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है। बट आप देखिए ध्यान से, ये भी पांचवा इलेक्ट्रॉन भी जो है फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि इसको भी फ्री कराने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी होती है, दिस इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो अगर आप सिलिकॉन में पेंटावलेंट ऐड करते हैं तो इस पांचवें इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर आप जर्मेनियम की बात करते हैं तो मेरे को 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, लेकिन 0 केल्विन पे तो आप ऐसे कह सकते हो मेरे पास कोई एनर्जी है ही नहीं, बिल्कुल एनर्जी नहीं। देखो ध्यान से आप, बिल्कुल 0 केल्विन कोई थर्मल एनर्जी नहीं, तो पूरे पूरे परफेक्ट बॉन्ड होगा। इवन ये जो आपका बॉन्डिंग में है भी नहीं इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्री नहीं हो सकता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पास, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 0 केल्विन पे आपको जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो भी किस तरह काम कर रहा है, एज ए इंसुलेटर। किस तरह काम कर रहा है, एज ए इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आपके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे सर ईडी क्या बताता है, दिस कॉल्ड द डोनर एनर्जी लेवल, दिस ईडी इज कॉल्ड द व्हाट वी हैव डोनर एनर्जी लेवल। क्या बताता है ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपका जो पांचवें इलेक्ट्रॉन है उसके एनर्जी स्टेट के बारे में बताता है। दिस इज बेसिकली द टेल्स अबाउट द, आई से
एनर्जी ऑफ योर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली। मान लीजिए टेम्परेचर आपका 0 केल्विन से 300 केल्विन की तरफ होता है, तो क्या होगा? व्हेनेवर द टेम्परेचर इज मूव फ्रॉम 0 to 300 केल्विन, सडनली वी से दिस कि कहीं ना कहीं आपका जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, विच इज मूविंग फ्रॉम व्हाट, ईडी टू ईसी, एंड दीज बेसिकली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड along with vc we have what, bonds are broken. So what happened? So definitely I say this, we have a large number of electrons in the basically the conduction band, and we have what, few holes or few vacant place in the valence band. So here we say we have a two way to the electron. One is what, from the pentavalent atom, I say this electron is free and it become पॉजिटिव आयन। ओके, एंड along with I say this we have what number of bonds are broken. So जितने भी इसमें आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जितने भी आप इसमें क्या करेंगे, पेंटावलेट एटम ऐड करेंगे, वो हर पेंटावलेट एटम में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, साथ के साथ में बॉन्ड भी ब्रेक होंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड में कुछ ही होल्स होंगे, क्योंकि आपके पास होल आने का एक ही तरीका बॉन्ड टूटे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के दो तरीके, एक तो क्या है, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है और साथ के साथ आपके बॉन्ड भी टूट रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और होल्स कम होंगे। तो समटाइम्स आई से दिस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रॉन एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। और अगर यहाँ पे एक और छोटी सी बात अगर हम करें, तो कई बार आप ऐसे भी कहते हैं कि सर यहाँ पे एक टर्म होता है ईडी, ईडी से रिलेटेड। आई से दिस क्या रिलेटेड है, कि जैसे मैं आपसे कहूँ सर डोनर लेवल आयनाइजेशन, क्या मतलब हुआ डोनर लेवल आयनाइजेशन का? डोनर लेवल आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि सर इस इलेक्ट्रॉन का, इस पांचवें इलेक्ट्रॉन का या इस ईडी वाले इलेक्ट्रॉन का कहाँ पे जाना, कंडक्शन बैंड में, तो उसको हम बोलते हैं डोनर लेवल आयनाइजेशन। सो द मोमेंट ऑफ द बेसिकली द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईडी टू आई से दिस EC is called the डोनर लेवल आयनाइजेशन। और ऐसे भी कई बार कहते हैं कि आप एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कि रूम टेम्परेचर आते आते ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी आप इसमें पेंटावलेंट एटम ऐड कर रहे हो, सारे के सारे पेंटावलेंट एटम रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देते हैं, साथ के साथ बॉन्ड भी टूटते हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ मेरे पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कब, रूम टेम्परेचर पे। एंड आई से दिस कि कहीं ना कहीं आपके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन में, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर कंट्रीब्यूटिंग द करंट। We have a few number of holes in the valence band. So majority carriers are I say this electrons and the minority carriers are holes. And in this n-type semiconductor, the electrons are responsible for the more current and they create less noise, but holes are responsible for the less current but they create more noise because like it's a thermal vibration, क्योंकि इनका नंबर्स कम होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, इस वजह से क्या होता है, ज्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं। जबकि अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो ज्यादा करंट कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसमें नॉइस क्या होती है, कम होती है। तो ये आया, अगर एक बार हम इसको पूरा समराइज करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर हम क्या ऐड करते हैं, पेंटावलेंट impurity ऐड करते हैं, and each pentavalent impurity donate one electron to the crystal and become positive ions. And I say we have a two way to the electron, one way is what, from pentavalent atom, and the another way we get the what, bond breaking. So we say in n type crystal we have what, large number of electrons and we have what, small number of holes. So in n type semiconductor majority carriers are electrons and the minority carriers are holes. And here the more current is responsible because of the electron, because electrons are in large number and the current is very much proportional to your what, carriers or number of like electrons. So this is we have. So now we expect we definitely the conductivity increases. Now just try to understand and listen carefully, see this. If I take the mass action law, so what is the mass action law? The mass action law, if I just take about the mass action law, so what is the mass action law? Mass action law says n dot p is equal to ni square. So if I just take this, so what is the mass action law? So mass action law, I say this n dot p is equal to ni square. So what is the meaning of n dot p is equal to ni square? Means I say the number of electron and the number of electrons, I say like this n dot p is equal to the product of number of electrons and the number of holes in any semiconductor, like extrinsic or extrinsic, is always constant, and which is a square of your intrinsic carrier concentration. Again I repeat the mass action law, in any type of semiconductor, it may be intrinsic or extrinsic, the product of electrons and the holes is always constant, which is a square of intrinsic carrier concentration. N dot p is equal to ni square. And this is valid at thermal equilibrium whenever the temperature is constant. So this is the law. And if I say this, in for n-type semiconductor, for n-type semiconductor, n is much greater than ni. For n-type semiconductor, for n-type semiconductor, for n-type semiconductor, n much greater than ni. Because I say this, we have a two way to get the electron. One way is what, bond breaking, and other one is what, for pentavalent atom. And here I say this, p is less than ni.
यहाँ पे जो P की वैल्यू होती है Ni से काफ़ी कम रहती है, तो आप ऐसे कहते हैं कि सर N की वैल्यू तो Ni से काफ़ी ज़्यादा रहती है और P की वैल्यू क्या होती है Ni से काफ़ी कम रहती है। ओके, एंड क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपका वैलिड रहता है n डॉट पी इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, तो N की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहेगी, P की वैल्यू क्या होती है Ni से काफ़ी कम होती है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से लास्ट बच रहा है इसमें, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए ध्यान से दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि आप कहते हैं कि each impurity atom basically donate one electrons, it become positive ion. So देखिए ध्यान से this is we have, so this is a representation of your n type semiconductor. Each impurity atom donate one electron, and I say this along with we see the bonds are also broken, so definitely I say this is I say the representation of your n-type semiconductor. And here we count the number of electron, so it may be like 8 electrons, and we have what 8 negative charge. If I take the positive charge कितने 6 and 2 8, so 6 positive charge, 6 negative charge. So I say this, the crystal is neutral, crystal is completely neutral. So n-type semiconductor, even I talk about the intrinsic semiconductor, both are neutral. So this is we have. So I just theoretically discuss, if I just brief it. So say n-type semiconductor, large number of electrons and less number of holes. Electrons are responsible for the current. And here I say this, okay, you know this representation of your, this is mass action line, n is always greater than ni because we have two way to get, and if this is hold, so p should be less than ni, and this is happening because of the what large number of recombination. Sometimes student ask why p is less than ni, and this is because of what large number of recombination inside the crystals. Now I take a little bit fast p-type semiconductor. So I take this because p-type semiconductor is very much similar to your n-type semiconductor, but I just change here impurity. So in p-type semiconductor we add basically the trivalent impurity. Either we mix, you know, boron, aluminum, whatever we want we can mix, third group we can mix. So just try to understand the crystal. So again I draw the what crystalline structure. Crystalline structure at T is equal to 0 Kelvin. As you know this, at T is equal to 0 Kelvin we don't have an energy. So here basically mix the third group. So you know this third group means, you know, 3 electron at the outer cell. So this is 1, 2 and this is 3 here. So roughly I draw this picture, okay? So try to understand the meaning. Okay, if I draw this. So we have like, you know, 3 electrons. So this is basically the incomplete bond. So this is a crystalline structure at room temperature. And I say this, we don't have like bonding here because here only we have 3 electrons. So this is incomplete bond, but I just try to understand and see this, we don't have any vacant place like I say कि कोई भी यहाँ पे बॉन्ड आपका टूट भी नहीं सकता है, टेम्परेचर आपका 0 केल्विन है, ना ही कोई यहाँ पे वैकेंट प्लेस, ना ही आपके पास यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ना होल है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपका जो वैलेंस बैंड है पूरी तरह से फिल्ड है, एंड आई से दिस, ये पूरी तरह से आपका क्या एम्प्टी है। तो आपका जो वैलेंस बैंड है वो पूरी तरह से क्या आपका फिल्ड है, और जो आपका कंडक्शन बैंड है पूरी तरह से एम्प्टी, कोई भी नहीं है। यहाँ पे एक और एनर्जी लेवल है, यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज ईवी हियर, दिस इज ईसी हियर, नाउ आई डिफाइन हियर ईए, and EA is basically the acceptor energy level. So this EA is called the acceptor energy level, and which represent basically the energy of your third group, okay, or I say this trivalent impurity. Okay, so at T is equal to 0 Kelvin we don't have an energy. Now again I say this, your you know, crystal, or I say this p-type semiconductor behaves as insulator. But as we increase the temperature, you know, this temperature जैसे ही बढ़ेगा वैसे आपको पता है एनर्जी
एनर्जी आएगी। तो होता क्या है कि आपको पता है कि सर ये आपका जो थर्ड ग्रुप है वो अनस्टेबल है, वो जाहिर सी बात है अगल बगल वाले एटम्स को अट्रैक्ट करता है। और पता है आपको कि अगर इसको बॉन्ड को कंप्लीट करना है, सो इट रिक्वायर्ड जस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, this 0.01 electron volt for germanium एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए चाहिए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जर्मेनियम के लिए चाहिए इस बॉन्ड को बनाने के लिए, तो आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर होगा 0 केल्विन से 300 केल्विन की तरह, तो तुरंत होगा क्या कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये तुरंत यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ पे गायब होके और ये तुरंत अपना बॉन्ड फ्रेम कर लेगा, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, तो अट्रैक्ट करता रहता है। जितने भी इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आप ऐड करेंगे, 10,000, 15,000, 50,000, लाख, 2 लाख जो भी ऐड करेंगे, सारे के सारे इमीडिएटली क्या कर लेंगे, बॉन्ड फ्रेम कर लेंगे, तुरंत यहाँ पे बॉन्ड फ्रेम कर लेंगे, सारे के सारे बॉन्ड बनाते चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ बॉन्ड बनाते चले जाएंगे तो यहाँ वैकेंट प्लेस आते चला जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हो जो एक्चुअल में बॉन्ड टूट जाएगा? तो एक्चुअल में बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है कि वो वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, आपका वैलेंस बैंड में चला जाएगा। तो शायद आप समझ रहे होगे इस बात को पूरी तरह से कि जैसे ही हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं किसी भी क्या सेमीकंडक्टर में, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सारे के सारे जो आपके ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी तुरंत वो बॉन्ड बना लेते हैं। अब बॉन्ड बनाते ही क्या होते हैं, वहां पे वैकेंट प्लेस आ जाएगा और एक्चुअली बॉन्ड टूट रहे हैं। सो वी हैव ए टू वे टू गेट द होल, वन इज व्हाट बॉन्ड formation and the second way is what bond breaking. So we say in the p-type semiconductor we have a large number of holes if I just compare with electron, तो इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे जो होल्स हैं खूब होते हैं इन p-type semiconductor, the holes are majority carriers and electrons are what minority carriers. तो p-type semiconductor में आपका जो होल है which is responsible for the more current with less noise, in electrons are less current with more noise because of the numbers are less. So this is we have. So in p-type semiconductor we add the what pentavalent sorry trivalent impurity. Okay, now just try to understand and listen carefully. See this. If I just take the what again the mass action law. So what is the mass action law? I say this mass action law is equal to n dot p is equal to ni square. N dot p is equal to what? Ni square. Means I say this n dot p is equal to ni square means I say in case of n type p type semiconductor the p is much greater than ni. p की वैल्यू क्या होती है, ni से काफी ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो n होगा is much less than ni because I say this mass action law holds. Why p is much greater than ni? So I say this p is much greater than ni. I say this is because here we have a two way to get the holes. One is what bond formation, one other one is what bond breaking. So p is less than ni, p is much greater than ni, and n should be less than ni. Sometimes in the exam asks why this n less than ni. This is just because of large bond formation. Okay, so if I just check what is the representation of your p-type semiconductor, every impurity atom basically I say this except one electron, so it become negative ion and it create holes in the crystal. So I just represent your p-type semiconductor in that manner. So this is I say this is a representation of your p-type semiconductor. Every impurity atom basically I take this except one electron, so become negative ion, and here I say this we have a holes whenever bonds are broken. So again we see this picture which is neutral. So if I just recall like your p-type semiconductor, so what we actually see in p-type semiconductor we add trivalent impurity. Each trivalent impurity basically accept one electrons and create holes in the crystals, and along with we see the bond breaking. So we have a large number of holes in the p-type semiconductor and we see this less number of electrons. In p-type semiconductor the majority carriers are holes and the minority carriers are electron, and again I say the holes are responsible for the more current, electrons are responsible for the less current, and this is we have a representation. If I talk the mass action, so p is much greater than ni and the n is less than ni, and this is because of the large bond formation. Okay, so this is basically the I say this n type, p type, as well as what your intrinsic semiconductor, and all the semiconductors n type or p type is always neutral. Okay, we don't have any charge in the semiconductor. Okay, here we see the EA in the last case. I say this EDA is represent the accept energy level, and which represent the basic energy of this trivalent impurity, and ED is represent the energy of this pentavalent impurity. Okay, so this is we have. Now I take the another thing. Okay, now I just discuss about law of electrical neutrality. So if I just take the word law of electrical neutrality, so what is the meaning of law of electrical neutrality? So I say this which is very much related to your like mathematical discussion for your like n type or p type semiconductor. So now just try to understand law of electrical neutrality. So what is the meaning of law of electrical neutrality? So see this. If we have this is semiconductor wire, if I just add with na number of acceptor impurity and the number of your donor impurities, so definitely I say this na is basically the number of acceptor impurities, number of
acceptor impurity. So Na is called the number of acceptor impurity, and the Nd is what? Number of donor impurity. सो एन इज नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एंटिटी. जैसे आप इसमें एन ऐड करेंगे तो क्या करेगा, उतना ही ये होल क्रिएट कर देगा. सो आई से दिस पी इज नंबर ऑफ होल्स, पी नंबर ऑफ होल्स, एन क्या है यहाँ पे, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? आपको पता है कि जितने ये होल क्रिएट करेगा उतने नेगेटिव आयन, जितने इलेक्ट्रॉन के उतने पॉजिटिव आयन. सो ऑलवेज आई से दिस एन ए प्लस बेसिकली पी इज इक्वल टू एन डी प्लस एन. जितने इलेक्ट्रॉन, दिस इज बेसिकली द आई से this is we have here. I say this is not correct, sorry for this is number of like negative ions. This is basically we have a negative charge, this is also we have a negative charge, this is positive here and this is positive here. Sorry for this is not valid here. This is total positive charge, this is Na plus P should be equal to Nd plus N. So the law of electrical neutrality says the total positive charge is equal to total negative charge. So Nd plus P is equal to Na plus N. So this is we have Na plus P is equal to Nd plus P. Okay, so this is law of relativity. Because I say this, the crystal is neutral. जितना positive charge होगा उतना negative charge होगा. So total positive charge as well as total negative charge should be equal. Now just try to understand and see this. If I take the what we have for p-type semiconductor, for n-type semiconductor, for n-type semiconductor there is no meaning of Na. So if I just take the Nd plus P is equal to Na plus N. So here I say this Na is 0, so I say this N is very much like Nd plus P. So these are the number of electrons in n-type semiconductor, and which is very close to your N is equal to Nd here. Now I just try to understand and see this here, the sigma N is equal to Nq mu N, okay, and which is Pq mu P. Is it correct? Very much. Now just try to understand, listen carefully. The sigma N is equal to Ndq mu N. Here I say this Pq mu P, and this Pq mu P is very close to 0. Very simple. Now I say this, what about the conductivity for n-type semiconductor, which is Ndq mu N? Is it correct? Very much. So this is sigma N is equal to, I say this, which is Ndq mu N. So this is very simple, and this is very much approximate result. I say this N is a Nd, I just replace N is equal to Ndq mu N, and this is Pq mu P. So sigma N is equal to Ndq mu N. So this is here, and we also observe that whenever we increase the doping concentration, we see the conductivity increases. So very simple, and try to understand all these things, okay, carefully. Now see, what about like here, if I just take this here, this N is what? Majority carrier. If I say the mass action N dot P is equal to Ni square, so what about the P? So P is equal to Ni square upon Nd. So here this N is called the majority carrier and this P is called the what? Minority carrier. So this is we have, okay. Now just try to understand for p-type semiconductor. देखिए, अगर हम p-type semiconductor की बात करेंगे, so there is no meaning of this Nd. So now I say this Nd plus P is equal to, I say this Na plus N. So if I just Nd is equal to 0, so P is equal to Na plus N. Yes or no? So P is equal to Na plus N. Now just try to understand, listen carefully, see this. What about the basically P is approximated to Na, and what about this N? So N is equal to Ni square upon Na. So P is equal to Na and N is equal to Ni square upon Na. This is P is majority carrier, N is what? Minority carrier. Now just try to understand what is the basically the conductivity. So sigma P is equal to what? I say this sigma P is equal to, I say this, yeah, or I say this general expression, sigma is equal to Nq mu N plus Pq mu P. So I say this this sigma is equal to Nq mu N, and here I say this P is equal to, I say this Naq mu P, and it should be equal to 0. So what about the sigma P? Sigma P is equal to Naq mu P. So now I just say this is the conductivity for n-type semiconductor, this is conductivity for p-type semiconductor. If I just want resistivity, so I reverse it. So what is the unit of this? This is mho per centimeter. So mho per centimeter, this is the what? Mho per centimeter. So conductivity is mho per centimeter. This is what? Mho per centimeter. Is it correct or not? Very much. So this is, we have a mathematical idea. So why we go for the what doping? So you know this, I just want to increase the conductivity. So mathematically we can now just try to calculate these terms. Here we observe 2-3 things. The majority carrier is very much proportional to doping concentration. Here I say this N and P, and this N is equal to Ni square upon N. So here the minority carriers are very much inversely proportional to that of doping concentration. This is we have P is Ni square upon Nd. So doping
जो माइनॉरिटी कैरियर है वो डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि अगर आप देखें मेजोरिटी की तो वो क्या आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एंड ऑल्सो वी सी दिस कंडक्टिविटी सिग्मा p is equal to NAQ mu p, and I say this here we have what n sigma p, this is directly proportional doping. So how many numbers of I doped the material because the extra donate the carriers, कंडक्टिविटी अपने आप ही क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी. So this point should be noted. So this is we have 2-3 points should be noted in the gate examination. We see the direct questions. Now I take the one example to understand the situation, because if I see the journey from like intrinsic semiconductor to the extrinsic semiconductor, so why we left your intrinsic semiconductor? So I say I left your intrinsic semiconductor because its conductivity is so small and there is no practical significance. So I left your intrinsic semiconductor. Okay, so I left your semiconductor. Reason you know this, because its conductivity is very small. So we go for the what extrinsic. Why we go for the intrinsic? We just want to increase the conductivity. Now I take the example and just I want to understand either the conductivity is increase or decrease, either the conductivity increases or not, because my interest is that I just want to increase the numbers, and we see theoretically, but I just want to see mathematically. So I take the example, I say if we have about pure germanium, I just take the example like this. So we have about pure germanium, तो अगर मैं प्योर जेर्मेनियम, आई जस्ट डोप द मटेरियल लाइक doping profile is what 1:2.7. So if you have got pure germanium, so I just dope the material, okay, with this pure germanium, and I say this dope the material with 1:10⁷ doping profile. Yes, so I just want to see what is basically the conductivity. Then I just want to calculate its enhancement, how much the conductivity increases. So this try to understand. If I say this, we have this profile. So I say this 10 to the power silicon or germanium atom, I just put one impurity. Okay, so the one silicon or germanium, I say this is we have what 1/10⁷. So what about the basically germanium? So germanium is in per centimeter cube. So we know this number of germanium atom. So these are basically, I say 4.4 to 10 to the power 22 per centimeter cube, and the number of silicon atom is 500 to the power 22 per centimeter cube. So this is we have. Now I say this, if I take, we have what 4.4 to 10 to the power 22 per centimeter cube. So this is we have what 4.4 to 10 to the power 22 into 1/10 to the power 7. So it become how much, which is 4.4 to 10 to the power, I think so this is 7. If I just subtract, this is 1.5 per centimeter cube. Okay, so these are basically, I say this ND, number of donor impurity. If I take donor impurity, okay, so this is donor impurity, so I say this ND. So ND is equal to 4.4 to 10 to the power 15 per centimeter cube. Now if I just try to calculate the conductivity, so what is the sigma n, which is ND mu1 into Q. So what is this? This is 4.42 into 10 to the power 15 per centimeter cube, and mu1 is the 3800 into Q is 1.6 to the power minus 19. So hope so we can get 2.64 mho per centimeter. So this is basically the conductivity if I just try to calculate it. So now my interest is that what is the enhancement, so increase in conductivity. So we get for how much? The previously I find out the conductivity for the pure germanium, which is I got 0.0224, and here I say this is 2.64, so which is very close to 120 times. Means I say this, whenever I dope the material to the extent of 1:7, so we observe that the conductivity increases 120 times. So this is my goal. So whenever we have pure semiconductor, the conductivity is so small, then I dope the material. So finally I've observed that conductivity increases. Okay, so in that lecture we see what we see in that lecture. So we see the number of things. So what we see, pure semiconductor, extrinsic semiconductor, n-type, p-type, and we also see this why we go for the p-type, n-type. We say I just want to increase the conductivity. Okay, so now we stop the class right now. Okay, thank you for this. Okay, so we further discussion we see in the next. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.